गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम वर्कशीट नंबर 36 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, जो आपको 25 सितंबर 2020 को मिलेगी, जिसका टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। You all know what is area and perimeter as you have studied this in your previous classes. And you all know some of the figures, rectilinear figures that you have studied, such as square, triangle, quadrilateral, rectangle, etc., etc. So precisely we are going to discuss about area and perimeter in this particular worksheet. It is just a recapitulation of what you have studied in your previous class. So you've already studied about figures of different shapes such as square, rectangle, triangle and quadrilateral. The floor of your classroom is rectangular and its perimeter and area can be calculated. Now what is perimeter of rectangle? You have studied it in your previous classes. It is twice of the sum of length and breadth. And what is area of rectangle? It's length multiplied by breadth. Now we'll discuss about the units of measurement of perimeter and area. Now, first of all, we'll discuss about the unit of perimeter. Now, perimeter is what? Basically, we all know and learnt about various formulas for calculating the perimeter of various shapes. आपको बेटा याद होगा, जब भी हम मैम हमें बताती थी तो हमें कहते थे कि आपको ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगी? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और स्क्वायर का करोगे तो भी आप कर सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। फिर हम उनका फॉर्मूला पढ़ते थे। अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता और हमें वेरियस प्लेन फिगर्स की साइड्स पता है तो हम उसका पेरीमीटर निकाल पाते थे बाय एडिंग एम all the sides of these figures. Now when you add length plus length of various sides, then centimeter will be added into centimeter and the answer will come out to be centimeter if the sides are given in centimeter. Similarly, if the sides are given to be in meters, then meter will be added to meter, so the unit will remain in meter only. So what is the unit of perimeter? Perimeter की यूनिट वही होती है जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट होती है। और लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट क्या होती है? इट इज ईदर मीटर्स और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स और किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ विल कम टू द एरिया। नाउ you know what is area of rectangle? It is length into breadth. For example, आपको लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ब्रेड्थ भी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ आपका 1 सेंटीमीटर है। जब आप 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मीन्स व्हाट? एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आया है यहाँ। सिमिलरली, अगर लेंथ और ब्रेड्थ आपके मीटर्स में हुए तो आपका एरिया का यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो आई मीन टू से कि जो पेरीमीटर होता है वो जो यूनिट होती है उसी में होता है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। So perimeter is in meters or centimeters and area will be in square meters, square centimeters, square millimeters, etc., etc. Now we'll discuss about the area of triangle. Now you all know what is triangle. I am making a simple triangle that you have studied like this. Let's name it as A, B, C. Now I am taking BC as base. What is the formula for area of triangle? Half base into height. Now I am taking BC base.
So I am dropping a perpendicular from A on BC and naming it as D, AD. So if you take BC as base, the corresponding height will be AD. Now if I am taking AC as base, then मेरा height AD नहीं होगा, फिर मुझे AC के ही corresponding height लेनी है. Like I have dropped a perpendicular and named it as BF. So if I take AC as base, corresponding height will be BF. If I take AB as base, corresponding height will be your CE. तो I hope this is clear to you. मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, जो ये फॉर्मूला होता है इसमें जो हाफ बेस इंटू हाइट है, ये हाइट हमेशा आपकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होती है. Like I have made a triangle, it is not a very proper triangle, but just for your understanding I have made a rough figure. अब इस triangle में 3 sides हैं, मतलब इसमें 3 bases possible हैं, AB, BC and AC. If I take BC as base, my height will be AD. If I take AB as base, my corresponding height will be CE. And if I'll take AC as base, my corresponding height will be BF. तो always take this into account कि आप किसको बेस ले रहे हो और उसी की आपको corresponding height लेनी है हमेशा. Now बेटा हम अब एक right angle triangle की बात करेंगे. या आप यहाँ पर एक देख सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC. यहाँ B पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? अगेन इट इज हाफ बेस इनटू हाइट. तो इफ आई एम टेकिंग AB एज बेस, देन आई एम टेकिंग BC एज हाइट. और इफ आई टेक BC एज बेस, माई हाइट विल बी AB. राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए आपका इतना फर्क नहीं पड़ेगा. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप AC को यहाँ पर अभी हम बेस नहीं ले रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, AB को बेस ले रहे हैं तो BC को हाइट ले सकते हैं, BC को बेस लेंगे तो हम AB को हाइट ले सकते हैं. नाउ हियर वन मोर क्वेश्चन इज गिवन टू यू. यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा होगा DEF. Let's read the question. We can easily find out the height of an equilateral triangle. Equilateral triangle आपको सबको पता है क्या होता है, जिसकी तीनों sides equal होती है. If the length of its sides is known. For example, look at triangle DEF. आपको एक triangle दिया हुआ है और इन्होंने mention करा हुआ है कि it is an equilateral triangle. Now it means DE is equal to EF is equal to DF. और इक्वल साइड्स की लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर ईच. व्हाट विल डू, विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन EF. तो इट मीन्स कि ये जो DG है ये आप EF का परपेंडिकुलर है. नो, अब आप क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे DGE और इसमें आपको आप लगानी है पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आपका हो गया यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और आपने इसको ले लिया बेस और ये हो गई आपकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. राइट, तो आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज इज DE स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर. अब इन्होंने क्या करा है, इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो आपका आ जाएगा DG स्क्वायर, क्योंकि हमें DG स्क्वायर निकालना था. DG स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर. DE की वैल्यू आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर हमने पुट कर दी. और क्योंकि ये जो DG है ये EF पे परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है, जो आप एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है. तो इसका मतलब EG और GF EF के हाफ हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर ईच.
ये आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, आपने कैलकुलेट करा, आपका डी का स्क्वायर आ गया 75। तो डी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप आ गया 5√3 सेंटीमीटर, आपकी हाइट आ गई। अब आप एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ व्हाट इज योर बेस, यू आर टेकिंग बेस एज EF एंड हाइट एज DG। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज डालनी है, EF आपका 10 सेंटीमीटर है और DG आपने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट करा है 5√3 सेंटीमीटर। तो आपने जब वैल्यूज पुट करी तो आपका आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन विल डिस्कस, सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस किया था, फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्कस किया है, अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। आपको इस फिगर में आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ PQR, जिसमें PQ और PR आपके गिवन है इक्वल 5 सेंटीमीटर ईच और आपको QR दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपको हाइट निकालनी है। पहले PS, ये आपकी हाइट हो गई, और फिर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब सिमिलरली इसमें भी हम यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमने इस पे PS परपेंडिकुलर डाला है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जो आप ये वाला जो मतलब अनइक्वल साइड होती है, जिसे हम बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है और एक साइड इक्वल नहीं होती, तो जो इक्वल नहीं होती है उसे हम बेस कहते हैं, जो बाकी दोनों साइड्स इक्वल होती है हम उन्हें इक्वल साइड्स कहते हैं। तो जो अनइक्वल साइड है आपकी, जो बेस है, उस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका QS और SR इक्वल हो जाएगा, क्योंकि QR आपका 8 सेंटीमीटर था तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगेन इन दिस ट्रायंगल PSQ, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइट है और ये आपका बेस है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये हाइपोटेन्यूज कितना है 5 स्क्वायर, और आपका बेस कितना है 4 स्क्वायर। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले से इन्होंने लेके दिखा रखा है, दिस इज द थिंग। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे 9 आ गया, तो PS आपका 3 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया मेथड कि आप किस तरह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट निकालेंगे। 2 साइड्स आपको गिवन होंगी, ये पूरी साइड आपको गिवन है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये इसका हाफ हो जाएगा, ये 8 था तो वो 4 रह गया, ये 4 रह गया, इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका, इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे और आप ये वाली साइड को निकाल लेंगे। फिर हम एरिया निकालना है, एरिया इज वेरी इजी, हाफ बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस आपने लिया है QR और हाइट ली है आपने PS, आपने वैल्यूज पुट इन करी और आपका ट्रायंगल का एरिया आपका आ गया 12 सेंटीमीटर